बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है उस पाक परवरदिगार की ज़ात से कि यकीनन आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने जहाँ पर चीज़ों को लेफ्ट किया था, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। कोशिश करते हैं कि वहाँ से चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। आपको याद होगा मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताकर फिर एक वीडियो आपसे शेयर की थी। वो वीडियो हम कल कंप्लीट नहीं देख सके थे। अगर आपको याद हो तो हम उस वीडियो को एक बार आपसे दोबारा शेयर करेंगे और देन वी विल मूव टू अ सिंपल क्वेश्चन which we will attempt on Mentimeter। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत सारे लोग Mentimeter को इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने आपको Mentimeter पर कोड और लिंक के ज़रिए चीज़ों को शेयर किया और आपने उन्हें लिख कर दिखाया। तो पहले मेरा ख्याल है हम वीडियो को आपसे डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्त हु आर एब्सेंट आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली। इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं उससे मुतालिक एक चीज़ है और कल मैंने वो शेयर भी किया था, मुझे याद आया मेंटीमीटर पर। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो लिखा सही आंसर और कुछ लोगों ने नहीं लिखा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़े इत्मीनान से पुरसुकून अंदाज में वीडियो को देखें और जहाँ जो चीज़ आप पूछना चाहें वहाँ हैंड रेस करें ताकि मैं वीडियो को वहाँ स्टॉप कर दूँ और फिर हम वहीं से डिस्कशन का आगाज़ कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप खामोशी से बैठे वीडियो देखते रहें, समझ में आए नहीं आए। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस करें और हम उस चीज़ को डिस्कस कर लें, राइट। तो मैं आपसे वीडियो को शेयर करता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही सर। ओके, रुक जाइए, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। A story. It's a प्यारे story बच्चों, about आप मुझे लिख के Claudio रिप्लाई and करके how he बताइएगा runs आवाज़ आ his रही है। business in Italy. Before we start, let's just get clear on what accounting is. Accounting makes it possible to systematically record, analyze, and report important financial information and communicate the financial health of a business to all interested parties. It's called the language of business, and it's the backbone of any company because every business needs reliable data to make informed decisions. But what does that really mean? Let's just take a moment to make this a bit more transparent and understand the basics of accounting. So let me tell you about Claudio. Imagine we're in Italy, which is also one of my favorite places,
a nice beach city where a man called Claudio is selling souvenirs to tourists. He only sells one item, a beautiful plate made from colorful glass. In the morning, he leaves his home with 100 euros and goes to the manufacturer of the souvenir. Each plate costs 1 euro, so Claudio buys 100 pieces with his 100 euros. He walks to the beach and sells the plates to tourists for 5 euros a piece, and by noon, he's sold out. He goes home happily and repeats the same process the next day. After a month, he wants to know how much the business made. What if he sold more than one item? Which one was more profitable? Would it make sense to expand his business, like rent a fixed stand at the beach? Without a way of recording the daily activities of his business, he's not going to be able to answer these questions. Accounting makes this possible. Not only will each financial transaction be recorded, but Claudio will also get detailed reports summarizing his financial performance. We call these reports financial statements. Let's start with Claudio's profitability. If you want to find out about a business's profitability, you go to their income statement. This is one of the main financial statements. There you can find out how much sales a business had in a certain period, which costs, and what was the resulting profit or loss. There is another name you may hear for the income statement. Do you know what it is? P&L, for profit and loss. It's a fairly simple business model, and the P&L for Claudio's business would look like this. He sold 100 plates for 5 euros each. That's what we call sales or revenue, which were 500 euros. The plates he sold, he didn't get for free, right? He incurred costs to buy them. Each plate cost him 1 euro. Therefore, in total, his costs were 100 euros. We call this the cost of goods, which we need to deduct from revenue. To keep it simple, we don't consider any other costs for now, like fees and taxes. If we add this up, we can see that Claudio made a profit or net income of 400 euros. That's how a simple income statement. जी बच्चों, आप सब मेरे साथ हैं, वीडियो देख रहे हैं? यस लिख के बताइए प्लीज। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी तवील है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ इन्होंने यहाँ बताई कि जो कार्डियो है, जो कि ये बिज़नेस कर रहा है, जिसने बिज़नेस शुरू किया हुआ है, वो अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए कुछ रिपोर्ट्स बनाएगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ज़रा प्लीज़ उसको देखिए और इस लिंक पे जाके अपने अपने रिस्पॉन्सेस को ज़रा प्लीज़ रिकॉर्ड करवाइए, ठीक है? और ये है जनाब अली, मैं आपको भेज रहा हूँ। जाइए मेंटी पर, यस एग्जैक्टली ताबिश, मेंटी पर जाइए, मेंटीमीटर पर जाइए, यहाँ जाकर अपना लिंक रिकॉर्ड करवाइए, अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाइए। दो आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैंने मेंटीमीटर का एक लिंक शेयर किया है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। प्लीज जाकर इस लिंक पर अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाइए। अगर आप वीडियो देख रही थी तो कार्डियो जो कि एक बिजनेस कर रहा है, वो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को, जी मैंने देख लिया कि आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज गो on the link which I provided in chat box and record your response, that what do you think that Mr. Cardio is going to prepare reports related to his business performance, and the question about his performance or related reports is mentioned in the Mentimeter. आपको वहां जाकर अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना है। जो लोग अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं, थैंक यू ताबिश।
अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है मुझे वीडियो को दोबारा प्ले करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलें बहरहाल। अच्छा जी, तो अब ऐसा करते हैं कि इस बात को हम अब मैं आपसे ना YouTube की वीडियो शेयर करने के बजाय एक डिफरेंट चीज़ शेयर करता हूँ, मेंटी का रिजल्ट कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चले। ये है बच्चों आपका रिस्पॉन्स, अगर आप देख रहे हो। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को? ये आपका रिस्पॉन्स है जो आप इस वक्त प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने। अब बात यह है कि मैंने क्या कहा है यहाँ, आपने पढ़ा नहीं सही से। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इन वन वर्ड और स्टेटमेंट। अब ये वीडियो शो करने से पहले ही, ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पहले ही बता दी थी कि इनकम स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस एंड बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। बताया था या नहीं? तो अगर मिस्टर कार्डियो अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने से मुतालिक जो रिपोर्ट्स वो बनाएंगे, उन रिपोर्ट्स में इनकम स्टेटमेंट होता है और बैलेंस शीट होती है। नहीं, देखिए यहाँ लिखा है हाउ वुड यू डिस्क्राइब इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इन वन वर्ड और स्टेटमेंट। तो मैंने इसीलिए जरा यहाँ वन वर्ड लिखा और स्टेटमेंट, क्या ऐसा ना हो कि बच्चा कंफ्यूज हो, बोले सर वन वर्ड तो नहीं था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू वर्ड्स हैं, तो मैंने इसीलिए यहाँ जानबूझकर लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने मार्क किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने मार्क किया, कुछ लोगों ने सही से पिक नहीं किया। बहरहाल आइए, अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं एक बार आपसे दोबारा शेयर करता हूँ ये चीज़, ठीक है? अब आप गौर से सुनिएगा और मैं वीडियो को रोक लूंगा वहां पर। But Claudio will also get detailed reports summarizing his financial performance. We call these reports financial statements. ये वर्ड था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कुछ याद आया आप लोगों को या भूल गए? क्या आप क्लास में हैं? बस इतने से लोग हैं मेरे साथ क्लास में? जी, अगर सब मौजूद हैं तो क्लास में लाजमी आपने लिखकर यस सर भेजना है, ठीक है? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, ये होता है कि हम वीडियो को देखते हुए कितना उसमें इन्वॉल्व हैं। अपनी इन्वॉल्वमेंट को मैक्सिमम रखेंगे तो फिर चीज़ें याद भी होंगी, समझ भी आएंगी और वो आपको पेपर के वक्त भी क्लिक करेंगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं जल्दी Let's से। start with Claudio's profitable sales or कहाँ तक पहुंचे थे हम? business जी, would look like this. He sold 100 plates for 5 euros each. That's what we call sales or revenue, which were 500 euros. The plates he sold, he didn't get for free, right? He incurred costs to buy them. Each plate cost him 1 euro. Therefore, in total, his costs were 100 euros. We call this the cost of goods, which we need to deduct from revenue. To keep it simple, we don't consider any other costs for now, like fees and taxes. If we add this up, we can see that Claudio made a profit or net income of 400 euros. That's how a simple income statement would look like.
Next, we're going to take a quick look at the second main financial statement, the balance sheet. The balance sheet shows which assets the company owns, the liabilities it owes to others, and the equity that belongs to the owners. Assets are usually things of value or resources the company owns and uses. For instance, land and buildings, office equipment, inventory, or cash, just to name a few. बच्चों यहाँ पर एक नया वर्ड आपने सुना और वो है क्या? बैलेंस शीट में हमने आपसे कहा था बिजनेस की पोजीशन शो की जाती है, तो बिजनेस की पोजीशन में हम यही बताते हैं ना कि व्हाट वी हैव टुडे, लाइक हाउ मच कैश वी हैव in our business, how much cash is in our bank account, the furniture we have in our business, उसकी जो कॉस्ट होगी। इसी तरह जो हमारे पास रिसीवेबल्स हैं, जो हमारे पास राइट है कस्टमर से पैसे लेने का, ये तमाम चीज़ें बच्चों हमारे पास होती हैं। और ये सब इसी तरह लैंड हमारे पास कितने रुपए की है, बिल्डिंग की हमारी वैल्यू कितनी है, हमारे पास मशीन्स कितने की हैं, ये तमाम चीज़ें जो बिज़नेस में हमारे पास मौजूद हैं और हम इनको इस्तेमाल करके बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इनको और फिर बिज़नेस को चलाते हैं, इन सब चीज़ों को कहते हैं एसेट्स। और इस वीडियो में एसेट्स का वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हम एसेट्स को बहुत थॉरोली डिटेल में डिस्कस करेंगे और किन किन चीजों को स्पेसिफिकली एसेट्स की कैटेगरी में लिखा जाता है, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो मैं बेसिक अकाउंटिंग के नोट्स में स्टूडेंट्स से शेयर करता हूं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और बस इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि एसेट्स का वर्ड उसने बताया और उसने एग्जाम्पल्स भी दी। आई होप कि एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगी, राइट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आप हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैं मुस्तकिल देख रहा हूं किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज नहीं किया है। इट मींस आप चीजों को समझने की मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। Liabilities are what you owe to others. For example, a bank loan, or what you owe to your suppliers for goods or to the IRS in taxes. The third component is equity. This is a bit more abstract. It's the residual amount that would be left if the company sold all its assets and paid off all its liabilities. In other words, it's the difference between total assets and total liabilities. This leftover money belongs to the owners of the company. In the balance sheet, the assets are on one side and equity and liabilities are on the other side. If you draw a line. जी नूरुल फातिमा, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी नूरुल फातिमा बेटा, अगर आपने कोई क्वेश्चन रेस करना है तो आप वो लिखकर भी पूछ सकती हैं और आप चाहें तो अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को प्लीज जल्दी से। अच्छा, इक्विटी समझ नहीं आ रहा, ओके मेरा बेटा, बहुत आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से सुनिएगा, नहीं समझ आए तो बोलिएगा, मैं दोबारा कहूंगा। आपके बिजनेस में जो कुछ मौजूद है, बड़ा आसान सा स्टेटमेंट, गौर से सुन रही हैं। आपके बिजनेस में जो कुछ मौजूद है, आपका, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं आपका, यानी नूरुल फातिमा ने एक ब्यूटी पार्लर, एक सैलून या एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में जो कुछ मौजूद होगा नूरुल फातिमा, क्या वो जादू से आ गया मेरा बेटा? कौन लेकर आया होगा मेरा बच्चा? मोहल्ले वालों से लिया होगा, मस्जिद में चंदा जमा किया होगा, सबसे पहले कौन लेकर आएगा? बिजनेस करने वाला। शायान, तो मम्मी अब्बू पे चलना, अभी तक बड़े हो जाओ, अब फर्स्ट ईयर में आ गए हो बेटे, अब कुछ खुद भी कर लो मेरा बच्चा। जो पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से कुछ सेव कर लेते तो आज कारोबार स्टार्ट हो जाता ना, क्या ख्याल है? चलो, फ्रीलांसिंग करते थे, वेरी गुड ताबिश भाई। तो नूरुल फातिमा मेरा बेटा, बिजनेस में जो कुछ मौजूद होता है वो किसका होता है? ओनर का। अब ये तो मैंने बहुत आसान सी बात कही है, ठीक है। अच्छा, शायान भाई जो है ना वो तफरियां करते रहते हैं। अच्छा, इनकम अच्छी है भाई, अच्छी बात है, अल्लाह ताला और बरकत दे, अल्लाह ताला और आसानियां फरमाए। बस बात को ये समझाना है कि बिजनेस में जो कुछ मौजूद होता है, वेरी गुड मेरा बेटा शायान, बिजनेस में जो कुछ मौजूद होता है जनरली वो बिजनेस का ओनर लेकर आता है,
उसको कहते हैं ओनर्स इक्विटी, उसे कहते हैं कैपिटल, सरमाया उर्दू में, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, मालिक की मिल्कियत। नूरुल फातिमा, जब आप किसी बिजनेस में 10 लाख रुपीस लगाएंगी तो आप ओनर भी कितने की कहलाएंगी बेटा? जल्दी से मेरा बच्चा, हमें आगे बढ़ना है, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, बस मैं थोड़ा सा वीडियो को चला के रोकूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, आप 10 लाख रुपीस किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगी तो आप ओनर भी कितने रुपए की कहलाएंगी? 11 लाख रुपीस की, 9 लाख रुपीस की, यकीनन 10 लाख रुपीस की। तो 10 लाख रुपीस इज द इक्विटी ऑफ बिजनेस, 10 लाख रुपीस इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस में जो कुछ मौजूद है, अब अगर आप ये सोच रही हैं सर यकीनी सी बात है बिजनेस में जो कुछ आया होगा वो मालिक ही लेकर आएगा, तो नहीं मेरा बेटा। हम बिजनेस में अपने पैसे लगाने के बाद अगर हमें फर्दर नीड हो तो हम बोरो भी कर सकते हैं, हम जाकर बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अब जो पैसे लेकर आएंगे वो बिजनेस ने बैंक को करने होंगे वापस, ठीक है, तो वो बिजनेस की कहलाती हैं लायबिलिटीज। ठीक, अगर नूरुल फातिमा यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि हम वीडियो को जल्दी खत्म करें, और मुझे आज कुछ और भी चीजें इससे रिलेटेड डिस्कस करनी है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ जाएगा ना बच्चों, तो फिर आगे मैं आपसे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स की बात करूंगा, राइट। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, अगर आप मेरे साथ हैं। Between the two and one on top, it looks like a T. This is what accountants use to visualize accounting transactions. It's a very helpful tool, and we're going to come back to these T accounts all the time. You can see that the left side of the T is just as big as the right side. That's because everything the company owns, so its assets, was purchased either from debt, so somebody else's money, or its own money, meaning equity. डेट मींस जो लोन लिया है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? ऑल एसेट्स द कंपनी द बिजनेस ओन्स, जो कुछ बिजनेस में मौजूद है या तो वो कर्जे से आया है या फिर वो इक्विटी ओनर लेकर आया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिजनेस कर्जे से स्टार्ट कर लें, आप अपना कुछ पैसा लगाते हैं, फिर आप फर्दर बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, और इस तरह दोनों के कॉम्बिनेशन से बिजनेस को चलाते हैं। एग्री? वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages. For money to go to one account, it has to come out of another. We call this a flow of economic benefit from a source to a destination. We already said that assets minus liabilities equals equity. If we Students, please note this. Students, please note this. This is accounting equation that the assets of a business are always equal to liabilities plus capital. अब इसको आप जिस तरह दिल चाहे घुमा फिरा के लिख दें, इक्वेशन यही रहेगी। इस वक्त इक्वेशन आपको लिखी नजर आ रही है, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अब आप इसको चाहें तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कर दें। इसी तरह आप इसको इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी पढ़ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स पढ़ लें, राइट। तो बस थोड़ी सी वीडियो और कंप्लीट नहीं देखेंगे क्योंकि like this, we get assets equal liabilities plus equity. Both sides are always in balance, hence the name balance sheet. And that is the foundation for any accounting system. The accounting equation. The total amount of assets equals total liabilities plus equity. Both sides are in balance. With that in mind, let's see how the balance sheet looks like for Claudio. A balance sheet is always created at a certain point in time, like at the end of the business year or at the end of a quarter. In our example, it's the end of Claudio's business day. Claudio started out with 100 euros in cash, which is also the money or equity he put into the business. The cash on the left side equals equity on the right side. The balance sheet at this point is in balance. Then he spent the cash in the morning to buy the colorful plates. The plates are
what we call his inventory. In the process, his cash got reduced to zero, but in exchange, he received another asset, inventory. He didn't get richer or poorer by that, right? The total amount of assets is still 100, and of course his equity is 2. After he sold the plates for €5 each, he ended up with €500 in his pocket at the end of the day. His inventory is gone because he sold all the plates to the tourists. At the end of the day, his inventory value, therefore, is 0. He doesn't have any more plates. If we look at Claudio's balance sheet at the end of the day, we can see that the total value of assets, the left side is €500. That's the cash he came home with. On the credit side, we only have €100. The balance sheet is out of balance. As we know, this can't be. Both sides always need to be in balance. So what's wrong here? The missing component is the profit. बच्चों जवाब दीजिए. Why the balance sheet both sides should be equal? Write your answers in the Padlet wall. मैं लिंक शेयर कर रहा हूं आपसे Padlet wall का. आप जल्दी से Padlet wall पे जा रहे हैं और मुझे बताएंगे वहां लिखकर. यहां नहीं लिख रहे शायान. Padlet wall पे जाएंगे. मैं चंद बच्चों के नाम लूंगा, जिनके मैं नाम लूंगा वही लिखेंगे, बस सब नहीं लिखेंगे, पहले बता रहा हूं. Padlet wall मैं आपसे शेयर करने लगा हूं. आप Padlet wall पे जाएंगे, वहां सबसे पहले लिखेंगे अपना नाम, ठीक है, और नाम लिखकर आप वहां अपना नाम लिखने के बाद आप वहां पे रीजन लिखेंगे कि why the both sides of balance sheet are always equal. रीजन लिखेंगे. Padlet wall का लिंक मैंने भेज दिया है और मैं अब बता रहा हूं किन बच्चों ने वहां जाके लिखना है. राइट, आलिया आप जाके वहां पे लिख रही हैं, आफिया आप लिख रही हैं, अलीना आप लिख रही हैं, अलीशान आप लिख रहे हैं. जी एक्नॉलेज कर दीजिए, शुक्रिया जिनके नाम मैंने लिए हैं. आहत का नाम लिया नहीं, मैंने आलिया का नाम लिया है, आफिया का नाम लिया है, अलीना का नाम लिया है, अलीशान का नाम लिया है. मरियम हनीफ भी लिख रही हैं जाकर. जयाम मोहम्मद जयाम भी लिख रहे हैं. बस जल्दी से अपना रिस्पांस रिकॉर्ड करवाएं. अच्छा ताबिश आप भी लिख लीजिए, आपका बहुत दिल चाह रहा है, जल्दी से लिख दीजिए. शाबाश, एक्सीलेंट अलीना, वेरी गुड मेरा बेटा, खुश रहिए. क्या बात है, जबरदस्त, इतनी तेजी से रिस्पांस आया है. Why both sides of balance sheet are equal? बहुत सिंपल आंसर भी हो सकता है, लेकिन आपने पूरी लॉजिक भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. क्योंकि हमने देखा अभी जो कार्डियो ने बैलेंस शीट बनाई हुई है उसकी दोनों साइड इक्वल नहीं थी ना. अभी अभी आप लोगों ने देखा, आप देख सकते हैं ये रहा वीडियो में, 500 और 100. जबकि जब उसने बिजनेस शुरू किया था तो 100 रुपीज की इन्वेंट्री थी और उसने 100 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, तो उस वक्त तो इक्वल थी. लेकिन जब बिजनेस का एंड हुआ, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब अपने बिजनेस की वो परफॉर्मेंस जानना चाहता है, तो उस दिन वो देखता है कि आज उसके पास बिजनेस में पैसे तो 500 हैं, बट मालिक वो 100 रुपए का है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? आलिया थैंक यू सो मच, जयाम थैंक यू, आफिया एंड अलीना. और मैंने किससे कहा था, अभी तक 2-3 लोगों ने नहीं लिखा है, लिख रहे हैं, जरा जल्दी कर लें प्लीज. शाबाश. नूरुल फातिमा आपको भी मौका देंगे मेरा बेटा, बिल्कुल परेशान ना हो मेरा बच्चा. आलिया को कहा था, आफिया को कहा था, आयना को कहा नहीं, अलीना को कहा था, अलीशान, और उसके बाद मैंने कहा था जनाबे अली, मरियम हनीफ को, जयाम को. बस मेरा ख्याल है इतने ही लोगों को कहा था.
जी बच्चों, आप सबको वॉल विजिबल है, पेडलेट वॉल विजिबल है? आप सब अल्हम्दुलिल्लाह आंसर पढ़ चुके हैं और इसका सिंपल आंसर था अकाउंटिंग इक्वेशन। और हमारे प्यारे बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन हमें लिख के बताई। अच्छी बात है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वहां लिख के दिखाई है। आप ये भी कह सकते थे बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीडियो सिर्फ तफरीह के तौर पे नहीं दिखाई जा रही, बल्कि वीडियो में जो चीजें हमें नजर आ रही हैं अल्लाह करे वो आपको समझ भी आ रही हैं और याद भी रहें, राइट? हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बस अब वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। Wrong here. The missing component is the profit he made during the day. If we go back to the income statement, we see that Claudio's net income was 400 euros. This will be added to equity. Why? Because due to his successful business, he made the business more valuable. When he started out the day, it was worth only 100 euros, which was the money he put into the business when he walked out the door. When he came home, he had sold all his plates with a profit of 400 euros. So his business is now worth more, which is reflected in a higher equity. Net income is the link between the income statement and the balance sheet. So when we add the profit of 400 euros he achieved to equity, also the right side gets to a total of 500 euros, and the balance sheet balances like it should. So that's how it would look like for Claudio at the end of his successful day at the beach. I hope this video was helpful for you to get familiar with accounting basics. जी बच्चों, कैसी वीडियो थी? इंफॉर्मेटिव थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चला, इनकम स्टेटमेंट बनाना देखा, सीखा। ये तो बहुत छोटा सा था ना। और इसी तरह बैलेंस शीट के बारे में सुनने को मिला और कुछ नई टर्मिनोलॉजी सुनने को मिली, लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। इसी तरह प्रॉफिट का वर्ड सुनने में आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स का वर्ड सुनने में आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वर्ड थे। अगर आप किसी वर्ड पे कंफ्यूज थे या होते हैं तो मैंने आपसे कहा था, तो बड़ी आसान सी और यानी यूँ समझ लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है, आपको थोड़ा सा उसका अच्छा सा आइडिया हो गया। अच्छा, अब मजीद आगे बढ़ेंगे। इसको तो हम कर देते हैं जनाब अली, फिलहाल चलें बंद कर देते हैं और इसको भी फिलहाल मिनिमाइज करके हटा लेते हैं आपके सामने से और आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव वर्ड बिजनेस स्टेक होल्डर्स। चलिए, बहुत सारी जगहों पे एक्टिविटी हो गई है, थक गए होंगे आप। बिजनेस स्टेक होल्डर्स अब आपसे पूछते नहीं है बल्कि आपको बताते हैं कौन होते हैं। वैसे आप में से कोई बताना चाहेगा तो हैंड रेस कर सकता है। बिजनेस स्टेक होल्डर्स आपके ख्याल में क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू थिंक व्हेन द वर्ड कम्स बिजनेस स्टेक होल्डर्स इनटू योर माइंड? क्या है आपके ख्याल में बिजनेस स्टेक होल्डर्स? सानिया ने क्लास को अभी ज्वाइन किया है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप सब लोगों ने अपने अपने पॉइंट लिखवाए, लिखे, शेयर किए। जज़ाक अल्लाह बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाएं, आमीन। बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स लिखे हैं लोगों ने। आखिरी पॉइंट जो किंजा का मेरे सामने इस वक्त है वो कह रही है पीपल इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस। अच्छा, और ताबिश कहते हैं पीपल हु हैव शेयर इन मैनी कंपनीज, बिजनेस पार्टनर, पार्ट ऑफ बिजनेस, रिस्क टेकर्स। अच्छा जी, तो चलिए अब आप लोगों ने कितना सही और कितना गलत बताया, आइए इसको देखते हैं। आफिया ने भी बड़ा अच्छा लिखा, शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉइज, डायरेक्ट इंटरेस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, सानिया ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया है। तो सानिया, आपको पता है हमारी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है बेटा? सानिया, कैन यू हेयर मी? बेटा, मैं आप लोगों से डे फर्स्ट ये बात कह चुका हूं सब बच्चों से, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए,
ये लाइट ना होने का प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में सदाबहार है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो आप अपने गैजेट्स को रेडी रखा करें, डेटा कनेक्शन से क्लास ले लीजिए, मोबाइल के जरिए क्लास ले लीजिए, कम से कम क्लास में तो रहिए। अगर आप में से खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का साइंस बैकग्राउंड है और अगर वो क्लास नहीं लेगा, इंटरैक्टिव सेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यकीन कीजिए आप हमारी आवाज़ और हमारी वीडियोस को इतनी ज़्यादा खूबसूरत या इतनी अच्छी नहीं है कि आप इसको तन्हाई में बैठ के देखना पसंद करें, माजरत के साथ। तो बड़ी अदब से आपसे रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि किसी भी तरह क्लास में पहुंच जाया करें। मुझे नहीं पता आपकी लाइट हो या ना हो, चलें आपकी लाइट ना भी हो, बस आपके मोबाइल की बैटरी होनी चाहिए इतनी कि आप क्लास को ज्वाइन कर सकें। डेटा हमेशा डेटा भी इतना रखें। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी आपको डांट नहीं रहा, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पहले ये बता चुका हूँ और हो सकता है कि आप उस क्लास में ना हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, खुश रहिए, आपने मेरी बात को सुना, समझा और आपने रिस्पॉन्स दिया। चलिए, अब जो निकल गया है ना सानिया, वो लाजमी, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक बात, अब जब आगे हम पढ़ लेंगे ना सानिया, तो मैं क्लास में पूछूंगा भाई एसेट्स क्या होते हैं, तो अच्छे खासे लोग जवाब देंगे। उस वक्त आपको कुछ ऐसा फील होगा कि पढ़ाया है नहीं और पूछ रहे हैं, क्या है पढ़ाया है नहीं पूछ रहे हैं। तो इसलिए मेरा बेटा वीडियो जरूर देख लीजिएगा रिकॉर्डेड, सही है मेरा बच्चा, रिकॉर्डेड लेक्चर में शेयर कर दूंगा। अच्छा बच्चों, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो बिजनेस स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ओए होए, अंदाज देखिए आप, क्या कहता है, अब बिजनेस स्टेक होल्डर इज अ पर्सन और एंटिटी। अब ये पर्सन वाला तो बड़ा आसान है ना, उसमें तो मेरी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप बड़े समझदार लोग हैं कि जी पर्सन तो कोई इंसान है। और एंटिटी से मुराद क्या है, इसका मतलब है कि स्टेक होल्डर किसी बिजनेस को भी कहा जा सकता है। एंटिटी मींस यहां पर है किसी इदारे का वजूद, यानी बिजनेस स्टेक होल्डर जो है वो कोई शख्स या वो कोई इदारा जिसका हैविंग एन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यूं समझ लीजिए कि कोई शख्स या किसी इदारे का जहां किसी दूसरे कारोबार में, उसके मुनाफे में, उसकी परफॉर्मेंस में कोई इंटरेस्ट शामिल हो जाए तो उसे स्टेक होल्डर कहा जाता है। अच्छा, और आसान करके कहता हूं, मसलन यूं कह लीजिए कि जनाबे अली, आप बिजनेस में पैसे लगाते हैं, तो अब आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप बिजनेस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो आपको बिजनेस स्टेक होल्डर कहा जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक शख्स, अब शख्स नहीं, वो जिस शख्स ने कारोबार शुरू किया है, आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक से जाके लोन लेते हैं, तो सोच के बताइए कि क्या जो लोन देने वाला है उसे आपके बिजनेस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से कोई कंसर्न होगा या नहीं, या वो आंखें बंद करके बोलेगा लीजिए लोन, आप बहुत खूबसूरत हैं ले जाइए, होगा ना। तो नाउ द बैंक who is providing the loan to our business is stakeholder। समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं स्टेक होल्डर से असल में आपको लेके जाना चाह रहा हूं यूजर्स की जानिब। तो चलिए, अगर ये बात समझ आ गई तो इसको ज्यादा लंबा नहीं करते, अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं, और मुझे यकीन है आप मेरे साथ रहेंगे ऐसे ही। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन क्या कहता है, देख रहे हैं आप कि आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स क्या हैं बच्चों, तो स्टेक होल्डर हमें, आलियान साहब, कैन यू हेयर मी, आलियान गौरी, आलियान गौरी अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज अनम्यूट योर माइक। आलियान गौरी साहब, प्लीज अनम्यूट योर माइक। आलियान, आर यू देयर? आलियान गौरी, आलियान गौरी साहब मुझे लग रहा है सो गए क्लास में, वो क्लास में नहीं है, या फिर वो नाश्ते पे इस वक्त लगता है मसरूफ हैं।
बहरहाल ये वाला तर्ज अमल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बच्चे क्लास में लॉगिन होने के बाद सो जाते हैं, जब रिजल्ट आएगा उस वक्त भी वो सो ही रहे होंगे, और जब एग्जाम्स हो रहे होंगे तब भी वो सो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोते रहिए। हम आलियान गौरी साहब का नाम नोट कर लेते हैं, इंशाल्लाह इनसे एक मुलाकात का सिलसिला रखेंगे। आलियान इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रिस्पॉन्स किया आलियान नाम सुनते ही। हेबा इरफान, अस्सलामु अलैकुम, कैन यू हेयर मी? हेबा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेबा, क्या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है? हेबा, आर यू देयर? अच्छा, मुझे लग रहा है, अच्छा, हेबा आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है बेटा, तो जरा प्लीज अनम्यूट कर लें अपने माइक को मेरा बेटा, शाबाश, जल्दी से। हिबा, जी कैन सर। यू? यस जी मेरा बेटा, आप प्लीज, क्या आप इसको रीड कर सकते हैं क्लास के लिए, क्या लिखा हुआ है ये? हम जी, फर्स्ट स्टेप में क्या सीखने जा रहे हैं? आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, इंटरनल ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। अच्छा, इंटरनल में क्या क्या है? ओनर, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, वन लाइन स्टेटमेंट, क्या क्या है, कौन है ये लोग? हिबा कोशिश कर सकती हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर, यानी स्टेक होल्डर्स को बेटा हमने कैटेगराइज कर दिया, राइट? हमने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, वन इज इंटरनल एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल। तो इंटरनल स्टेक होल्डर जो है मेरा बेटा, मैं चाह रहा हूं आप उसके बारे में जरा बताएं कि ये कौन है, अगर आप लिख के बताना चाहें। ओनर्स हु ओन्स अ बिजनेस एंड मैनेजर हु मैनेज द बिजनेस। राइट, ओनर बेसिकली द person who invest in the business, managers who manage the business, और एम्प्लॉइज और मैनेजर्स क्या एक जैसे नहीं होते? एम्प्लॉयज सर वो होते हैं ना जो जॉब करते हैं और जिनको राइट, वेजेस मिलते बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैनेजर जॉब नहीं करते? हैं वो भी जॉब करते हैं बट वो मैनेज करते हैं सब, और एंटरप्रेन्योर एक्सीलेंट, ओनर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। भाई सब लोग तो जाहिर सी बात है ना, सब लोग तो जाहिर सी बात है बिजनेस में जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। हर कोई काम भी करेगा, अब किसी का काम मैनेज करना है और किसी किसी का काम जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है। देयर आर नंबर ऑफ पोजीशंस इन अ बिजनेस। थैंक यू सो मच हिबा। उसके बाद एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल के बारे में जनाब अली हसन रहीम, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हसन रहीम, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अनम्यूट, कम ऑन, हरी अप। हसन रहीम, आर यू देयर? हसन रहीम साहब, सर यस लिखने के बाद अनम्यूट कर लेना माइक प्लीज। आप लोग बड़ी देर लगाते हैं माइक अनम्यूट करने में। हसन रहीम साहब, आर यू देयर? सर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। मेरी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है? बच्चों, क्या आप सबके पास भी मेरी आवाज कट रही है खुदा ना खास्ता? अच्छा, हो सकता है इंटरनेट शदीद प्रॉब्लम का शिकार हो, शायद, खुदा ना खास्ता। नहीं मेरा बेटा, माइक में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये प्रॉब्लम जो है वो मुस्तकिल रहती है तो फिर मैं डेटा कनेक्शन की तरफ चला जाऊंगा। मुझे बताइए आप लोग, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, जब आपको लगे कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मैं
ठीक है सर, अब ओके। तो जरूर बताया करें प्लीज, वरना फायदा क्या, फिर लेक्चर तो सुनेंगे ही नहीं आप, इस तरह तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी, जो हम चाहते हैं वो काम नहीं हो सकेगा, राइट। अच्छा जी, क्योंकि देखें ये तो होता है ना, हाँ, वो ग्लिच जो आता है ना आलिया, जहां पर ऐसा लगे ना आपको मुस्तकिल वो ग्लिच चल रहा है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप मुझे जरूर बताएं, तो मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एंड भी इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बेयर करना पड़ता है इस चीज को। चलें, तो हसन रहीम साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट करें अपने माइक को और जरा रोशनी डालिए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पर। हसन, आर यू देयर? एक तो यार आप लोग माइक अनम्यूट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, ये बड़ा मसला है। हसन रहीम, कैन यू हेयर मी? जैस्मीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जैस्मीन, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जैस्मीन, कैन यू हेयर मी? जैस्मीन, आर यू देयर? ओके बच्चों, मेरा ख्याल है दोनों बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, या फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह इंगेज रखूं। महक, अनीस, आप मुझे सुन सकती हैं बेटा? जी सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेटा, खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक। अच्छा मेरा बच्चा, जरा आप हमारे लिए प्लीज पढ़ेंगी ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं मेरा बच्चा? कस्टमर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। अच्छा, कस्टमर्स तो बड़ा आसान सा लफ्ज है, आप जानती हैं, वो तमाम लोग जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, राइट। और क्रेडिटर्स का आइडिया है कुछ, क्या होता है? नो सर। अच्छा, क्रेडिटर्स आर दोस पर्सन्स फ्रॉम होम वी टुक लोन, आर द पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट। यानी आसान लफ्जों में, वो लोग जिनसे हम कर्ज पर माल लेते हैं, उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, ऑल दोस पर्सन्स और एंटिटीज आर क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर जरूरी नहीं है, हमें कर्जा देने वाला जरूरी नहीं कि कोई इंसान हो, हमें कर्जा देने वाला बैंक हो सकता है, तो फिर बैंक को क्रेडिटर कहा जाएगा। और अगर हमने किसी इंसान से कर्जा लिया है तो उसे भी क्रेडिटर कहा जाएगा। ठीक है महक? कह सकते हैं किसी हद तक, सही है, बिल्कुल सही। आप लोगों के कमेंट्स का, आपके मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। महक, आप क्लियर हैं क्रेडिटर्स के वर्ड पर बेटा? ओके। अच्छा, और गवर्नमेंट किस तरह से हो सकती है भाई एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, ये कौन समझाएगा जल्दी से, शाबाश। गवर्नमेंट किस तरह से, एक्सक्यूज मी यानी, सर। जी मेरा बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी प्लीज। जैसे अभी हमने सीखा कि स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो, राइट? राइट। तो क्रेडिटर्स तो मुझे समझ आ गया कि जैसे लोन देते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे बिजनेस के पहले बारे में पहले जानेंगे, बट कस्टमर्स बिल्कुल, कैसे स्टेक होल्डर्स हुए? जबरदस्त, बेहतरीन सवाल। मैं ही जवाब दे देता हूँ, इस सवाल का जवाब बाकी लोगों से अभी पूछना मुनासिब नहीं होगा। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो वो इस तरह से देखिए कि अब आप खुद बताइए मुझे जरा, बड़ा आसान सा। अच्छा, सितारा जवाब देना चाह रही हैं, चलिए दे दीजिए सितारा, अगर जवाब देने के लिए आपने हैंड रेस किया है। ताबिश भाई अब सवाल छोड़ें, अब तो जवाब सुने अगर आप सुनना चाहते हैं। जी सितारा, अगर आप जवाब देना चाह रही हैं तो जल्दी से दे दें। या अस्सलाम वालेकुम आलिया? सर। सर वालेकुम आवाज़ आ रही है सलाम। मेरी? जी मेरा बेटा बिल्कुल आ रही है। तो कस्टमर्स ऑफ कोर्स अब वो जो है प्रोडक्ट्स हमसे बाय करते हैं, तो उनको बिजनेस में वो होगा कि ये बिजनेस मतलब क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, या वो मतलब उस तरह एक्सीलेंट बना रहे एक्सीलेंट, क्या बात, तो इस तरह जबरदस्त मेरा बेटा, बेहतरीन। देखिए ना, बहुत अच्छा समझाया सितारा, जजाकल्ला बेटा, खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो हमेशा। और नूरुल फातिमा ने क्वेश्चन किया था, आई होप नूरुल फातिमा को भी एक आइडिया तो हो गया होगा कि सितारा क्या समझाना चाह रही है और मैं भी क्या बोलने वाला हूँ। बेसिकली जब आप किसी बिजनेस के कस्टमर होते हैं तो आपके दिमाग में उस बिजनेस का एक परसेप्शन होता है। मसलन आप KFC से क्यों बर्गर खाती हैं, आप हार्डीज से क्यों बर्गर खाती हैं, आप मैकडोनल्ड से क्यों खाती हैं,
या आप इलाके के मोहल्ले के दुकानदार से बर्गर खरीद के क्यों खाती हैं? कुछ ना कुछ क्वालिटी, टेस्ट, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, यानी अच्छा इसी तरह जो कस्टमर्स होते हैं वो ये भी तो देखते हैं ना कि ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है, ये बिजनेस प्रॉफिट इतना जनरेट करता है, यकीनन ये बिजनेस अगर प्रॉफिट इतना जनरेट करता है तो ये अपने कस्टमर्स को अच्छा सामान बेचता होगा। अच्छा ताबिश, इंटरनेट हो सकता है बेटा मेरे या आपके एंड पे मसला कर रहा हूं, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में सही, क्योंकि देखिए ये इंटरनेट जो है ना ये एक बहुत मुश्किल चीज है। हम लोग ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग की तरफ तो आ गए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस के हवाले से हम थोड़े से अभी, हालांकि एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, हाँ बिल्कुल नाजुक सूरत हाल है, क्या करें, बस अल्लाह करे जो मैं लफ्ज अदा कर रहा हूँ वो पूरे पहुंच जाएं आप तक। सूरत हाल तो बड़ी नाजुक है। ठीक है, आगे बढ़ूं। नूरुल फातिमा, आई थिंक आप क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है सितारा, हैंड डाउन कर दीजिए। जजाकल्ला मेरा बेटा, बहुत अच्छा समझाया आपने, खुश रहिए। सितारा आप हैंड डाउन कर देंगी प्लीज, लोअर हैंड का ऑप्शन यूज कर लीजिए। जजाकल्ला मेरा बेटा। अच्छा, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, और गवर्नमेंट के बारे में मैं पूछना चाह रहा था, कोई समझाएगा तो गवर्नमेंट किस तरह से इन्वॉल्व होती है? अच्छा, जजाकल्ला, अलीना ने जवाब दे दिया, और सब जवाब पढ़ लें बस, अब छोड़े छोड़े आप हैंड रेस ना करें, क्योंकि लेक्चर बड़ा फिर इस तरह से वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा अब इसको शॉर्ट करूं और जल्दी से आगे बढ़े हम, ठीक है? सेकंड यूनिट स्टार्ट भी हो गया और 15 मिनट्स तकरीबन पास हो गए, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा और स्पीड अप करें। चलें, क्या कहता है आप? असेस स्टेक होल्डर्स इंफॉर्मेशनल नीड्स। अब स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशनल नीड्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, देख रहे हैं आप, थर्ड पे आ गए, वापस आए। अगर आप गौर से देखें तो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी इंफॉर्मेशनल नीड्स को असेस करते हैं, और कैसे एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि स्टेक होल्डर की नीड्स को पूरा करे। स्टेक होल्डर्स बता दिया कौन है, तो उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक डेटा बिजनेस का, यानी बिजनेस की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, और डेफिनेटली जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्लासिफाई करते हैं, तो समराइज, और समराइज करने के बाद ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि तमाम बिजनेस के स्टेक होल्डर्स समझ जाते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस और बिजनेस की पोजीशन क्या है। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल? शुड आई मूव फॉरवर्ड? बच्चों क्या आप मेरे साथ हैं? समझ आ रहा है ना? मैं तेज तो नहीं हो गया? ओके। प्रिपेयर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स फॉर स्टेक होल्डर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए फिर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। अब एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, चला जाता हूं, ये लीजिए। जयाम साहब फरमाइए। ये आ गया 3 और 4, राइट? जयाम मुझे प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। और यहां पर हमने देखा 5, राइट? अच्छा, अब यहां पर ना प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, स्टेक होल्डर्स को अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाकर दे दी गई, इन सबको अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मिल गई थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? अब स्टेक होल्डर्स के बारे में ना बड़ी तवील मेरे पास एक बनी हुई है प्रेजेंटेशन, मैं आपसे थोड़ी सी वो यहां शेयर करता हूं, बहुत थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ठीक है? जनाबे आली, ये है मेरे पास एक अदद, चलिए आपको शो करते हैं। बच्चों आपको स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल है, और आप देख सकते हैं इसमें आपको नजर आ रहे हैं
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स जो मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसा ही है बच्चों। और अब मैं आपसे चाहता हूं शेयर करूं यूजर्स। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर बहुत सारी चीजें डेवलप की जब हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम लर्निंग स्टेज में हैं। हम चीजें वक्तन फवक्तन बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से चीजों को आपके सामने पेश कर सकें और आपको इंगेज रख सकें, आपको इन्वॉल्व रख सकें, कि आप देख देख के थके नहीं, बोलें क्या एक ही स्क्रीन दिखा दिखा के सर ने पका दिया। वैसे ही मैं इतनी खूबसूरत आवाज में बोलता रहता हूँ मुस्तकिल। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ जनाब अली, अकाउंटिंग क्या है, और फिर उसके बाद ये सब पढ़ा हुआ है हमने, राइट। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है सिर्फ आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। मुझे पता है मैं तेज जा रहा हूं, बट ये सब पढ़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स, and finally now we are on users, internal and external, right? So here are few slides which I जनाब क्या कहना चाहिए कि मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, इसमें से कुछ जो है हमने गूगल से ली हैं, कुछ हमने डिफरेंट रिसोर्सेज से इनको कलेक्ट किया और यहाँ आपसे शेयर कर रहे हैं। लाइक इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, आप इस स्लाइड को देख लें इत्मीनान से। और इसमें अब आगे क्या है, अगली स्लाइड, बड़े आसान आसान बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगे तो आप जरूर हैंड रेस करें, लिख के भेजें कि सर अब तक accounting called the language of a business communicate accounting information to help many types of users. The information that a user of financial information need depend upon the type of decision to be made. अब जाहिर सी बात है, आप मुलाजिम को कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर्स को कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, बैंक कौन सी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगा, एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले को क्या चीज से ज्यादा सरोकार होगा, वो किस चीज के लिए ज्यादा कॉन्शियस होगा। इट डिपेंड्स कि यूजर को किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। इंटरनल यूजर्स जिन्हें प्राइमरी यूजर्स भी कहा जाता है, एक्सटर्नल यूजर्स सेकेंडरी यूजर्स हैं, ठीक है। और जस्ट उनके नेम यहाँ मेंशन हुए हैं, इंटरनल मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर, लैंडर्स, लीगल बॉडीज, और कस्टमर्स, सप्लायर्स, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट और रिसर्चर्स। इसी तरह बच्चों यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की एक और स्लाइड आपके सामने है, यूजर्स दिए हैं और यहाँ इनकी एप्लीकेशन है। इस स्लाइड को मैं चाहूंगा थोड़ा सा गौर से अगर आप देखें तो हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। अच्छा, पास पेपर्स हम कोशिश करेंगे अब कि आपसे थोड़े से थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हमारे पास पेपर्स में आए हैं वो भी आपसे अब शेयर कर लें, ठीक है। तो मॉडल पेपर याद है आप लोगों को, मैंने पैडलेट वॉल का आपसे लिंक शेयर किया था। दो तरह की पैडलेट वॉल है जो हम यूज कर रहे हैं, अगर आपको याद हो, एक इंफॉर्मेशनल है और एक है एक्टिविटी बेस्ड। आज जो मैंने जूम आप कर सकते हैं ना, आप अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर इसे जूम कर लीजिए अगर चाहें तो फर्दर। अच्छा मुझे ये बताएं, आज हमने पैडलेट वॉल पे लिखा वो कौन सी पैडलेट वॉल थी? वो शेयरिंग थॉट्स के लिए थी या इंफॉर्मेशनल थी? बच्चों जवाब नहीं आया आपका अभी तक। शेयरिंग थॉट्स थी, राइट। अच्छा, और इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक बनाई हुई है जहां आप लोग पोस्ट नहीं करते हैं, जहां आपको चीजें सिर्फ शेयर करवाई हुई हैं। अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर मेरे पास वो नहीं है, तो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाके क्लास वर्क में अकाउंटिंग POA में चेक करें, पैडलेट वॉल और इस तरह की तमाम चीजें मैंने शेयर की हैं। वहां जाके पैडलेट वॉल का लिंक देख लें, वहां जाएंगे तो आपको मॉडल पेपर नजर आ जाएगा, पास पेपर्स के कुछ लिंक भी नजर आ जाएंगे, राइट। तो जरूर आप अपने तौर पर चीजें देख सकते हैं। अब मैं वापस इस पे बात करता हूं। यूजर्स में ओनर, स्टॉक होल्डर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, और एप्लीकेशन क्यों चाहिए इनको? क्योंकि टू इवैल्यूएट ऑपरेशंस ऑफ द फर्म,
ओनर और स्टॉक होल्डर्स बेसिकली सिर्फ इतना फर्क है कि ओनर सिंगल ओनर बिजनेस में होता है और स्टॉक होल्डर्स कंपनीज में होते हैं। क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं हम इस मर्तबा फर्स्ट ईयर में कौन से बिजनेस की टाइप, कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप पढ़ रहे हैं? मैं फिर क्वेश्चन को जो है वो रिपीट करता हूं, दोहराता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं हम फर्स्ट ईयर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी टाइप स्टडी कर रहे हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर देयर? देयर आर 3 types. Excellent. And we are just studying in first year the sole proprietorship. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमेशा ओनर होता है, कैपिटल होता है, लेकिन कंपनी जब जो कि सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वहां पर ओनर्स को स्टॉक होल्डर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अभी स्टॉक होल्डर के वर्ड से परेशान ना हो। ओनर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू इवैल्यूएट ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, वो देखेंगे ना कि भाई फर्म्स के ऑपरेशन कैसे हैं, उनको वो जज करेंगे और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट का क्या इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से? मैनेजमेंट क्या करती है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का? मैनेजमेंट को क्या जरूरत पड़ी है अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन हासिल करने की? जब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उस इंफॉर्मेशन की मदद से प्लान करती है और वो चीजों को कंट्रोल करती है कि कहाँ कौन सा खर्चा हो रहा है, कितना होना चाहिए, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। एम्प्लॉइज और यूनियन ऑफिशियल्स, वो लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को? टू यूज इन कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस। जब लोग देखते हैं कि हमारी बिजनेस को, हमारी जिस बिजनेस के लिए हम जॉब करते हैं, जहां हम मुलाजमत करते हैं, वो बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वहां एम्प्लॉयज चाहते हैं उनकी सैलरीज में भी एक अच्छा इजाफा हो। एग्री? भाई आपको जब पता चलेगा कि आपके बिजनेस को, जो जिस बिजनेस में आप जॉब करते हैं, वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो क्या आपकी ख्वाहिश नहीं होगी कि आप भी अच्छी सैलरी वहां से जो है वो हासिल करें, या आपको सैलरी वही मिलती रहे और बिजनेस बेशक चांद पे पहुंच जाए और आप पाकिस्तान में ही रहें? नहीं ना, आप कहेंगे चलो वो चांद पे पहुंचा तो मैं भी कहीं खला में तो पहुंच जाऊं, चांद पे ना पहुंच सकूं। चलिए, फिर लैंडर्स और सप्लायर्स टू इवैल्यूएट क्रेडिट रेटिंग्स। जाहिर सी बात है, कर्जा देने वाले देखेंगे कि मार्केट में हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या है, वो हमारी इंफॉर्मेशन को देखकर अंदाजा लगाएंगे कि भाई हम लोगों का कर्जा कितने अरसे में अदा कर देते हैं, अदा करते भी हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पास कर्ज का इतना बोझ है कि हम कर्जे अदा ही नहीं कर रहे और दिन ब दिन कर्जे में होता जा रहा है इजाफा। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो इवैल्यूएट करती हैं कि बिजनेस की टैक्स की जिम्मेदारियां कितनी होंगी। इकोनॉमिक प्लानर्स, कंज्यूमर ग्रुप्स क्या करते हैं? टू अप्रूव न्यू इशू ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स। इसको मेरा ख्याल है सेकेंड ईयर के लिए अगर आप छोड़ दें तो मुनासिब है, गवर्नमेंट एजेंसीज तक आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ता हूं। एक्सटर्नल यूजर्स। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, बड़े अदब से बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप जो है वो प्रेजेंटेशन अपलोड कर दें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज तो मैं प्रेजेंटेशन को अपलोड कर ही दूं फाइनली, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब आपसे डिस्कस हो गई हैं। लेकिन याद रखिए कि क्या मैंने आपको हर लेक्चर में सिर्फ प्रेजेंटेशन से पढ़ाया? तो भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स की कुछ अहमियत है, क्लास में फिजिकल होने की कुछ अहमियत है। अगर आप क्लास में फिजिकल हमारे साथ होंगे तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और अगर आप क्लास में नहीं है तो माजरत के साथ फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो आपको चीजें समझ आ सकती हैं। वरना आप ये सोचें अगर कि स्लाइड मिल जाएंगी और मैं पढ़ लूंगा और मुझे सब समझ आ जाएगा, तो फिर बड़ी माजरत के साथ सब तो नहीं आएगा, हाँ आ जरूर जाएगा। चलें, एक्सटर्नल यूजर्स एंड नीड ऑफ और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वही सारी बातें लिखी हैं जो अभी आपको पीछे पढ़ाकर आया हूं। और फाइनली यूजर्स यहां पे खत्म हुआ। इस स्लाइड को आपके सामने से हटा रहे हैं, वापस इधर आ गए और अब हम अगले वर्ड की जानिब जा रहे हैं। अगला वर्ड क्या है? अभी हमारे पास तकरीबन 15 मिनट्स हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आज का, हम अब बिल्कुल एक नई चीज की जानिब जा रहे हैं और वो है बुक कीपिंग। जी जनाब अली, बुक कीपिंग के बारे में क्या जानती है हमारी आवाम? कितने लोगों को बुक कीपिंग के बारे में पता है?
बुक कीपिंग के बारे में जिन्हें पता है, अरे सब्र तो कीजिए, फौरन लिखना शुरू कर दें। शायान भाई जाइए अपने नाम से पेडलेट वॉल पे, पेडलेट वॉल का लिंक भेज दिया मैंने दोबारा। शायान साहब जाके लिखिए पेडलेट वॉल पे बुक कीपिंग के बारे में क्या होती है। सही है। नूरुल फातिमा आप भी लिखिए जाकर, शाबाश। नहीं मेरा बच्चा यहाँ ना लिखें, वहां लिखें, मैं आपके नाम ले रहा हूँ, वो लोग लिखेंगे वहां जाकर। आतिफ करीम साहब सर पेडलेट वॉल पे तशरीफ ले जाइए, वहां ले जाके जाके जरूर लिखिए। हसन रहीम साहब आपने अनम्यूट करके जवाब नहीं दिया था, तो आप भी वहां तशरीफ ले जाएं। हसन रहीम हो गए, नूरुल फातिमा हो गई, शायान हो गए और आतिफ करीम, 4 लोगों के नाम मैंने लिए। जैस्मीन क्लास में नहीं है, जा चुकी है मेरा ख्याल है। शानजे जरूर, बिल्कुल आप भी जाइए और लिखिए। गुड, शानजे भी लिख रही हैं। रेहाना को मैंने कहा लिखने को। आलियान गौरी साहब आए और चले गए, हमें पता नहीं चला। मेरा बच्चा फिर पता है जब आप सबसे लिखवा लेता हूं ना, तो मेरे लिए फिर उनको पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। अब कहीं कुछ गलत लिख रहा हो कोई बच्चा, तो हम तो उसको, आप तो खुशी खुशी लिख रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं होगा ना। क्या ख्याल है? तो जैद हसन साहब, जैद हसन साहब भी लिखकर हमें शुक्रिया का मौका दें। जैद हसन, चलें। इफ्तिखार साहब से भी आज कुछ लिखवाएंगे, बहुत देर हो गई, इफ्तिखार भाई बेचारे खामोश बैठे हैं। इफ्तिखार साहब को भी मौका देते हैं। जनाब अली, क्या पोजीशन है हमारी आवाम की? लिखना शुरू किया जी, कोशिश जारी है। जबरदस्त शायान, बेहतरीन, बहुत मुनासिब वर्ड में आपने एक बड़ी सी बात को, और सितारा ने, अच्छा सितारा ने अपने तौर पे लिख दिया। चलें बहरहाल, लिख दिया तो अब लिख दिया, जाहिर सी बात है। अच्छा किया। अच्छा जी, जनाब अली, सितारा लिख के मिटा दिया क्या आपने? सितारा ने अच्छा हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। नूरुल फातिमा ने भी लिख दिया है, लेकिन नूरुल फातिमा आपने जो लिखा है, आप तो बुक कीपिंग को डिफाइन नहीं कर रही। आप तो कह रही हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आल्सो नोन एज जर्नल। मैंने तो पूछा व्हाट इज बुक कीपिंग। नूरुल फातिमा आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? नूरुल फातिमा हाँ सुन रही है, ओके। तो बेटा आपने तो वहां जर्नल को डिफाइन, आप कह रही हैं वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। शानजे ने लिख दिया, शुक्रिया शानजे, खुश रहिए। जैद थैंक यू भाई, आपने भी लिख दिया। नूरुल फातिमा क्या आप करेक्ट कर रही हैं या फिर? ओके बच्चों, आई थिंक हाँ जी, नूरुल फातिमा दोबारा लिख रही हैं। ताबिश, ये नहीं लिखना था यहाँ पे, ये नहीं लिखना था। बुक कीपिंग तो बड़ी आसान है बेटा। आतिफ करीम साहब ने भी लिख दिया है। ओके जी। सर ये देखें सर, मैंने पहले ही लिख दिया था सर, ये जो नहीं मेरा लिखा हुआ है, बोथ साइड शुड बी इक्वल बिकॉज एवरी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इंपैक्ट्स बोथ द साइड। अच्छा ताबिश साहब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, तो आपने, अच्छा सही लिखा हुआ है ना सर ये भी? सर लिखा हुआ तो है, जो भी लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये बुक कीपिंग को एक्सप्लेन कर रहा है? बोथ साइड शुड बी इक्वल, क्योंकि साइड वगैरह, बुक कीपिंग का एक जर्नल
मतलब जो समझ में आता है, यानी अगर मैं एक लेमैन स्टाइल में बात करूं, मुझे नहीं पता अकाउंटिंग क्या है या अभी अकाउंटिंग की क्या चीज की बात हो रही है, तो बुक कीपिंग का मतलब तो बस बुक्स को अपडेट रखना, बुक्स को मेंटेन करना इज कॉल्ड बुक कीपिंग, राइट। तो अब बात यह है कि कौन सी बुक्स, वो बुक्स जो अकाउंटिंग में बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यस्टरडे मैंने बुक कीपिंग के बारे में बात की थी, आपको याद होगा जर्नल के बारे में बात की थी यस्टरडे। बच्चों हमने जर्नल पढ़ा था। चलें, जिन बच्चों ने अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल। शायान, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आपने तो बिल्कुल सही लिखा है ना बेटा, तो फिर ये आपने क्यों लिखा है जो आपने आखिरी मैसेज मुझे किया है चैट बॉक्स में। चलें, मेरा ख्याल है कि हम इस पे बात कर लें जल्दी से, वरना डिस्कशन में काफी टाइम निकल जाता है। जी शर्जील भाई, अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। शर्जील साहब अनम्यूट करके प्लीज ये पैराग्राफ पढ़ दीजिए, बुक कीपिंग वाला। यस सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा, बिस्मिल्लाह। ऑलराइट। Bookkeeping is an activity concerned with the recording of financial data relating to the business operations in a significant and orderly manner. It covers procedural aspects of accounting work and embraces a record-keeping function. ठीक है, तो ये जोर किस पे दे रहा है शर्जील? रिकॉर्ड कीपिंग के फंक्शन पर, है ना? Yes, recording transactions basically. ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों को, क्योंकि पैडलेट वॉल का लिंक तो शेयर हुआ था, तो ऐसा तो कोई चीज है नहीं कि आपसे कोई चीज हाइड हो। आपने देखा कि बुक कीपिंग बेसिकली बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को जस्ट रिकॉर्ड करने का नाम है। हमने वो रिकॉर्ड लिखने का, रिकॉर्ड को रखने का, रिकॉर्ड को मेंटेन करने का नाम बुक कीपिंग है। और बुक कीपिंग असल में एकदम क्यों पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब आपको अंदाजा होगा। मैं आगे लेके बढ़ता हूं आपको मजीद। वैसे तो बाजार बुक कीपिंग बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग भी आपके एसएलओ में लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको भी जरा देख लेते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग में कहता है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। जब हम ट्रांजैक्शंस को मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड करें, ये ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। और नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्या है? एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। जब हम बुक कीपिंग करें तो उससे हमें ये पता चले कि उसके फाइनेंशियल असरात बिजनेस पर क्या होंगे। मसलन कॉमर्स के स्टूडेंट, अकाउंटिंग के स्टूडेंट अगर मेरे जुमले को सुने और एक्नॉलेज करें, तो जरा साइंस वालों को भी तसल्ली होगी कि मैं जो बता रहा हूं वो कॉमर्स वालों को समझ आ रहा है, रिकॉल हो रहा है, तो साइंस वालों को भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जरूर समझ आएगा। और जुमला यह है कि किसी भी फाइनेंशियल इफेक्ट को एनालाइज करने का मतलब कि हमने कोई मुलाजिम को काम करवाने के बाद सैलरी अदा की, तो बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ा और हमारे पास से पैसे चले गए। क्या ये फाइनेंशियल इफेक्ट है या नहीं? जब हमने मुलाजिम से काम करवाया और मुलाजिम को, एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो ये फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहा है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि फाइनेंशियल इफेक्ट्स को एनालाइज किया जाए, फाइनेंशियल इफेक्ट्स को जाना जाए। क्या पूरी क्लास मेरे साथ नहीं है बच्चों? 4 बच्चों के यस लिखे आने का मतलब क्या होता है? आप सब लोग अगर एक्टिव नहीं होंगे इस तरह तो फायदा क्या? रेहाना, मुझे पता है मैं आपका नाम बहुत कम ले रहा हूं मेरा बेटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप रिप्लाई करती रहती हैं, तो मुझे एक तसल्ली होती है कि रेहाना भी जो है वो हमारे साथ है क्लास में। और जो लोग नहीं रिप्लाई करते हैं तो फिर मुझे एहसास होता है कि भाई मैं नाम लेके इन लोगों से कहूं कि आप रिप्लाई करें। हाँ देखें, अपनी प्रेजेंस को शो करने का तरीका ये है ना कि आप या तो सवाल पूछें या फिर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, आर्गुमेंट करें,
और चीजें समझ नहीं आती तो पूछें। अब इतना अच्छा भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आता जा रहा है। तो कोई बात अगर कंफ्यूजिंग हो तो जरूर पूछिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जरा समझिए। पढ़ता हूं, मैं ही पढ़ता हूं जल्दी जल्दी क्योंकि आप आखिरी के कुछ मिनट बाकी हैं। Bookkeeping is a process concerned with the recording of transaction only, but accounting is a process deals with summarizing of recorded transaction. Agree? मुश्किल है? Okay. Now the second point which is making difference between accounting and bookkeeping, financial position. मलिक सलीम नहीं है ना आज क्लास में? मलिक सलीम नहीं है ना क्लास में आज? हाँ, अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता लोगों के नाम भी तो याद हो रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यही तो बात है ना, मसला ये है कि आपका साइंस का बैकग्राउंड है और आप क्लास में नहीं है, तो तकलीफ दे बात है ये बहुत। हमारी बात को अहमियत ही नहीं देते। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी एसरटेन्ड थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। कहता है फाइनेंस बिजनेस की जो माली हालत है ना, आज कारोबार में क्या मौजूद है, ये हमें सिर्फ बुक कीपिंग से पता नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ओनली। राइट? ऐसा ही है ना प्यारे बच्चों? और जब बुक कीपिंग करते हैं तो बुक कीपिंग के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप याद है क्या करते हैं? कोई बता सकता है रिकॉर्डिंग के फौरन बाद क्या करते हैं? लिख के नहीं भेज रहे आप अभी तक। रिकॉर्डिंग के फौरन बाद क्या करते हैं? किंजा, एक्सीलेंट, किंजा का आंसर सही है। बाकी सबने तुक्के लगाए। आयना थैंक यू सो मच। नूरुल फातिमा, मरियम आपने भी थर्ड स्टेप बोला है। रिकॉर्ड करने के बाद डायरेक्ट समराइज कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करते हैं। आयना थैंक यू सो मच बेटा। नूरुल फातिमा, रेहाना आपने भी आंसर लिख के भेजा, जजाकल्ला, खुश रहिए। ये होता है क्लास में एक्टिव रहने का अंजाम। तो भाई बात यह है कि रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई नहीं करेंगे। ताबिश देर कर दी मेहरबा, आते आते दम निकल गया अब तक तो मेरा, जब तुम्हारा जवाब आया। सही है, कोशिश क्या करो जरा जल्दी रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाओ मेरा बेटा। खुश रहो। चलो, अल्लाह ना करे ये सॉरी वॉरी लिखवाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता आप लोगों से, या आपकी मोहब्बत और ज़र्फ है कि आप लिख के भेज देते हैं। अब बात यह है कि बुक कीपिंग तो रिकॉर्ड करने का नाम है, तो रिकॉर्ड करने से बिजनेस की पोजीशन पता चलती है क्या? मैं सिर्फ, कल याद करें मैं जुमले कह रहा था, मैं सिर्फ ये लिख लूं कि पैसे आए पैसे गए, मैंने 3 महीने तक बिजली का बिल अदा किया। अब अगर ओनर पूछे कितना बिल है टोटल 3 महीने का, कितने पैसे हैं आज हमारे पास, तो मेरे पास तो रिकॉर्ड हुई नहीं है चीजें, मुझे क्या पता कितना है मेरे पास कौन सी चीज। तो याद करें हमने कल बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री लेजर का वर्ड पढ़ा था, याद आया कुछ? जिन्हें नहीं याद आ रहा ना वो कल का लेक्चर उठा के देखें। ये तो आपके लिए एक अच्छा वो है कि आप पुराने लेक्चर को देख के मेरे किसी भी वर्ड को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सर ने पढ़ाया है या सर हवाओं में बातें कर रहे हैं जी। तो बच्चों हमने कल पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गया आपको, कि लेजर बेसिकली क्या करता है, वो जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं उनका अलग अलग अकाउंट बनाकर मुख्तलिफ हिस्सों में बांटकर हमें बताता है कि कौन सी चीज का कितना बैलेंस है, और फिर उससे मजीद आगे ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनती है। तो रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है, और अकाउंटिंग इज वे फ्रॉम विच फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस कैन बी एसर्टेन। फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता सकती बुक कीपिंग, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स नहीं बता सकते, लेकिन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल नतीजा बता सकती है कारोबार का। यह है बुनियादी फर्क। ठीक है बच्चों, अल्लाह करे आपको बातें समझ आ रही हो। आज 100% आपको ये शीट मिल जाएगी इंशाल्लाह, तो आपके लिए चीजों को याद रखना और आसान हो जाएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, लास्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज, bookkeeping has no subfield but accounting has several subfields like financial accounting, management accounting, etc. तो बातों बातों में आप एक नई बात के लिए तैयार हो गए, और वो नई बात पता है क्या है? बुक कीपिंग की तो कोई फील्ड नहीं है फर्दर। बुक कीपिंग में तो जस्ट रिकॉर्ड करते रहते हैं ट्रांजैक्शन को और बस।
लेकिन अकाउंटिंग की सेवरल सब फील्ड्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप में से कोई मासूम बच्चा बोले सर हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी बेसिक अकाउंटिंग आसान लफ्जों में, जिसमें सबसे पहले हम रिकॉर्ड कीपिंग भी सीखेंगे अल्लाह के हुक्म से, और रिकॉर्ड कीपिंग के बाद ही, बुक कीपिंग के बाद ही हमारी अकाउंटिंग साथ साथ, यानी अकाउंटिंग का मेन जुज। ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि बुक कीपिंग के बगैर अकाउंटिंग हो जाएगी, ये तो वो वाली बात हुई कि हमारे पास। अच्छा 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 ताबिश भाई, चलें बस 1 मिनट और सुन लें, फिर मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ, सही है। बड़ी माजरत कि आपको नींद आ गई आज के लेक्चर में, हालांकि वैरायटी ऑफ स्क्रीन चेंज मैंने आपके सामने की है, लेकिन कोई बात नहीं, चलें, कभी ऐसा भी होता है। इसीलिए कहते हैं रात को नींद पूरी करें ताकि फिर आप लोगों को दिन में नींद ना आए, या हो सकता है मेरा लेक्चर ही आज जरा बोरिंग हो। बहरहाल बात को मुकम्मल करता हूँ, बुक की अकाउंटिंग की सेवरल सब फील्ड है, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम आपका असाइनमेंट छोटा सा दे देता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, आप अकाउंटिंग की टाइप्स, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आप लोग ढूंढेंगे। 1 मिनट का आपको रेस्ट दे रहा हूँ, 12:13 हो रहे हैं मेरे पास, क्लास ऑफ करते करते 12:14 हो जाएंगे। आप लोग 1 मिनट का रेस्ट कीजिए, फिर 12:15 पर दूसरी क्लास में तशरीफ ले जाइएगा। आपके नेक्स्ट टीचर आपका आपकी क्लास में इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज कोई बात समझ में नहीं आई तो अपने नोटबुक में लिख लें, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे पूछ सकते हैं। लाइव पूछना चाहें क्लास में लाइव पूछ लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां अता फरमाए, हंसता मुस्कुराता रखे, आपको दिनों दुनिया के हर मामलात में कामयाब फरमाए। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।